गाइस, सो राइट नाउ आई एम एट द बैंगलोर एयरपोर्ट और मेरी पौंडीचेरी की फ़्लाइट है। फाइनली मैं अपने एक सोलो हॉलीडे ट्रिप पर फर्स्ट टाइम जाने वाली। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि एक सोलो ट्रिप तो करनी पड़ेगी। सो आई डोंट नो अभी कितना टाइम तो है मेरी फ़्लाइट में, और बैंगलोर में बारिश भी बहुत और ठंड भी थी। आई रियली होप कि मुझे पौंडीचेरी में अच्छा मौसम मिल जाए, बिकॉज मैं बहुत अच्छे मूड से जा रही हूँ टू चिल, टू स्विम। अभी देखते हैं, साइक्लोन है तो आई लेट यू नो द मोमेंट आई रीच देयर। तो बहुत अच्छा एक रिसोर्ट बुक किया है मैंने अपने लिए। अभी मैं अपने गेट पर बैठी हुई हूँ। स्पाइस जेट की फ़्लाइट है मेरी। उन लोगों ने कहा मुझे कि फ़्लाइट कैंसिल भी हो सकती है, एंड आई लाइक नहीं, मेरे 4 दिन का प्रोग्राम पूरा ख़राब हो जाएगा। आई रियली विश कि फ़्लाइट डिले भी ना हो और कैंसिल भी ना हो, क्योंकि कल तो यहाँ से फ़्लाइट चली थी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। मैं तो गर्मी का सोच गई थी, यहाँ तो कुछ और ही हो गया है। आई ऑल्सो थॉट कि मैं अपने लिए एक अच्छा सा जैकेट ले लेती हूँ, क्योंकि ठंड हो गई है यहाँ पर मुझे मिला नहीं है एयरपोर्ट पे। तो अभी तो सिर्फ ये प्रे कर रही हूँ कि फ़्लाइट चल जाए यार। फ़्लाइट चल जाएगी तो मेरा पौंडीचेरी का ट्रिप का सपना पूरा हो जाएगा। एंड आई can't wait to go to Pondicherry and explore all the French colonies and all the best cafes in the town। मैं बहुत सुना है मैंने, तो इसलिए वो जगह भी जाना मुझे मेरी लिस्ट में था कब से। तो I'll keep you updated। Let's just hope कि flight cancel ना होगी। So, my Pondicherry trip officially begins. After a short flight, I landed at Pondicherry airport. The first thing I noticed was how small the airport is. You can be outside within just a few minutes. Once you step out, you'll need a cab to reach your hotel or resort. Although Ola and Uber might show up on your phone, I wouldn't recommend relying on them in Pondicherry. App-based cabs are often affected by local taxi union restrictions, so getting one isn't always easy. It's better to take a local taxi from outside the airport or arrange a pickup with your hotel in advance. I took a cab and headed straight to my resort, and somewhere during the drive, it finally hit me, like I was in Pondicherry. And this was just the beginning of my solo adventure. Now let's explore the place I booked for myself. So in Pondicherry, I chose Covers Resort in Auroville, and honestly, I couldn't have picked a better place. It's located right opposite the entrance of Maitri Mandir, which makes the location incredibly convenient if you are planning to explore Auroville. The moment I walked in, it felt less like a hotel and more like a peaceful little retreat. Everything had its earthy, village-inspired charm, but with all the comfort and convenience of the resort. It was quite surrounded by greenery and instantly made me slow down. As I entered my room, the first thing I noticed was a little kitchenette. There was a refrigerator, a coffee machine, utensils, and everything you would need if you wanted to make yourself a quick coffee or even cook a simple meal. It's one of those thoughtful touches that make a stay feel much more comfortable, especially if you are traveling solo. Right beside it was a bathroom, spotless, fresh and beautifully maintained. And then came the room itself. It was simple and minimal, yet so thoughtfully designed. The bamboo style blinds, the cozy couch, the earthy interiors, everything came together to create a space that felt calm, warm and effortlessly beautiful. Stepping outside, I found myself drawn to the pool area. Surrounded by trees and open spaces, it had such a peaceful vibe that you could easily spend hours doing absolutely nothing. The cafe followed the same aesthetic. Greenery all around, outdoor sitting and relaxed atmosphere that made you want to slow down and stay a little longer. Even outside the room, everywhere there were chairs where you could simply sit with a cup of coffee and enjoy the silence. And as the night fell, the entire place looked even more beautiful. The warm light, the peaceful surroundings, and the well-equipped shared kitchen made it feel incredibly like home. There were coffee machines, utensils, eggs, basic vegetables, like everything you might need if you felt like preparing a meal to yourself. It wasn't just a place to stay. It genuinely felt like a home and tucked away in nature. और अब टाइम था सोने का, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के मैत्री मंदिर देखने के लिए जाना था। और मैंने अपने लिए
स्कूटी बुक करी थी। आप लोग अपने लिए कार भी बुक कर सकते हैं, बहुत ईजीली अवेलेबल है ये ऑप्शंस, तो यू कैन चूज़ वॉट एवर यू फील लाइक। सिंस आई वॉज स्टेइंग राइट ऑपोजिट द मैत्री मंदिर गेट, तो मेरे लिए वहाँ तक पहुँचना सुपर कन्वीनियंट। मैंने अपनी स्कूटी ली और मैं डायरेक्ट वहाँ पर 2 मिनट में पहुँच गई। हाय गाइस, सो आज का दिन हम लोग मैत्री मंदिर जा रहे हैं, मतलब मैं मैत्री मंदिर जा रही हूँ। सो ये वो जगह है, पीछे सारी पार्किंग्स हैं यहाँ पर, और सामने जाते जाते मुझे मैत्री मंदिर मिलेगा जो ऑरोविल का सबसे हॉट स्पॉट है। लेट्स सी, 4 व्हीलर पार्किंग उधर सामने है। बारिश हो गई, मौसम तो बहुत सॉलिड हो रहा है। तो मैं अपना वॉक करते करते जा रही थी, बट देर इज़ वन थिंग यू शुड नो बिफोर यू प्लान योर विजिट। मैत्री मंदिर देखने के ना 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट इज़ द व्यू पॉइंट वेयर यू कैन सी द आइकॉनिक गोल्डन ग्लोब फ्रॉम द डिस्टेंस। फॉर दैट यू फर्स्ट नीड टू रीच द ऑरोविल विजिटर सेंटर। वहाँ से इधर यू कैन टेक अ फ्री इलेक्ट्रिक शटल और सिंपली वॉक फॉर अराउंड 10 minutes to the viewing point. It's completely free, but you do need to collect a visitor's pass from the visitors center. The timings are 9 a.m. to 5 p.m. from Monday to Saturday and 9 a.m. to 1 p.m. on Sundays. The second option is going inside the Golden Globe into the inner chambers of meditation. But this isn't something you can do on the spot. You have to pre-book the slot for at least 3 to 5 days in advance through the official Maitri Mandir booking system. Once your booking is confirmed, a shuttle will take you from the visitor centers to Maitri Mandir. Also, children below 10 years are not allowed inside, and you will have to keep your phones, bags in the lockers before the entering. The inner chamber remains closed on Tuesdays and Sundays. And if you are someone जिसको वॉक करना बिल्कुल पसंद नहीं है जैसे कि मैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि शटल सर्विस अवेल कर लेना जो डायरेक्ट मैत्री मंदिर ग्लोब के सामने आपको छोड़ देगी। मैं बहुत थक चुकी थी वॉक करते करते, बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ मैं पहुँची थी एक एग्जीबिशन सेंटर जहाँ पे अंदर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी कि मैत्री मंदिर क्या है, ये क्यों बना था, ये किसने बनाया था, एंड अदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरिया ऑफ मैत्री मंदिर। सो वो देखने के बाद में और चलना था, अभी भी वॉक ख़त्म नहीं हुई थी और मैत्री मंदिर ग्लोब आने का नाम नहीं ले रहा था। पर जैसे कि आप देख सकते हो रास्ते में ना आपको बहुत अच्छी लोकेशन मिलेगी पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए। मैं तो किसी को मोबाइल पकड़ा के अपना छोटा मोटा रिकॉर्ड करवा रही थी सिंस आई वॉज ट्रैवलिंग सोलो, बट वॉक ख़त्म ही नहीं हो रही थी, ह्यूमिडिटी बहुत थी। चलते जाओगे ऐसी बहुत सारी लोकेशंस आएंगी जहाँ पे आपको फ़ोटोज़ लेने का मन करेगा, तो वो लेना मत भूलना। And this is the most famous banyan tree of Auroville. At first glance, it might look like just another beautiful tree, but it's actually one of the most significant places here. In fact, this tree was chosen as a geographical center of Auroville by the mother, the founder of Auroville. Around this very point, the entire township was planned. और ये इतने सालों पुराना ट्री है कि जब ये इसे सेंटर चूज़ किया गया था तो आसपास का जगह पूरा खाली था। यही सेंटर पॉइंट था ऑरोविल का। मैं सजेस्ट करूँगी अगर जा रहे हो और कोई शूट करने वाला नहीं है तो अपना एक फ़ोन स्टैंड ले जाना मत भूलना। यहाँ पर बहुत अच्छी रील शूट होती है, बहुत अच्छे पिक्चर्स आते हैं। लुक एट इट, आज ये जो पेड़ है ये इतना फैल चुका है कि ऐसा लगता है कि आप फॉरेस्ट में ही खड़े हुए हैं। इट क्रिएट्स अ सीन लाइक फॉरेस्ट इटसेल्फ। ब्यूटिफुल प्लेस गाइस। एंड फाइनली देयर इट वॉज, दी मैत्री मंदिर। सच कहूँ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में जितना ब्यूटीफुल लगता है ना, रियल लाइफ में उससे कहीं ज़्यादा पीसफुल है ये जगह। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट या टेम्पल नहीं है। मैत्री मंदिर वॉज बिल्ड एज अ प्लेस फॉर साइलेंस, मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसलिए यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत काम और क्वाइट है। मैं बस यहाँ बैठकर इस व्यू को एंजॉय कर रही थी। कोई रश नहीं, कोई नॉइज़ नहीं, बस ग्रीनरी, फ्रेश एयर और एक अलग ही टाइप का पीस। कभी कभी ट्रैवल सिर्फ नई जगह देखने के लिए नहीं होता है, ऐसी जगहों को फील करने के लिए भी होता है। और अगर आप ऑरोविल आ रहे हो तो मैत्री मंदिर को सिर्फ एक फ़ोटो स्पॉट मत समझना, थोड़ा टाइम निकाल कर आओ यहाँ, बस यहाँ आकर बैठना और ऑब्ज़र्व करना। आई थिंक
दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस दिस प्लेस। टूरिस्ट्स हैं यहाँ पर अभी तो, और द वेदर इज़ ह्यूमिड। तो मैत्री मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद अगर आप थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हो तो डोंट वरी, बिकॉज उसके आसपास काफ़ी कैफ़ेज़ हैं और ऑनेस्टली यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। केक्स, पेस्ट्रीज, जिलेटो, आइसक्रीम्स, फ्रेश जूसेस, सैंडविचेस, पास्ता, पिज़्ज़ा, लिटरली एवरीथिंग मिल जाता है। तो चाहे आप सिर्फ कॉफ़ी पीना चाहो या प्रॉपर मील करना हो, यू विल ईजिली फाइंड समथिंग यू लाइक। और ट्रस्ट मी, थोड़ा ब्रेक लेना बनता है क्योंकि मैत्री मंदिर और ऑरोविल एक्सप्लोर करते करते काफ़ी वॉक हो जाती है। तो एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक लेकर ग्रीनरी के बीच बैठना, रिलैक्स करना, इट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द होल एक्सपीरियंस, यू नो। मुझे पर्सनली ये स्लो पेस बहुत पसंद आया। उसी एरिया के अंदर एक शॉपिंग एरिया भी है जिसे एक्सप्लोर करना डेफिनेटली बनता है। ये कोई रेगुलर मार्केट नहीं है। यहाँ की सबसे खास बात ये है कि जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं वो ऑरोविल के रेजिडेंट्स और आर्टिसंस ही बनाते हैं। बाहर से लाए हुए कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूजुअली सेल नहीं किए जाते हैं। यहाँ आपको हैंडमेड कैंडल्स, एसेंशियल ऑयल्स, होम फ्रेग्रेंसेस, सोप्स, सोवेनियर्स, क्लोथ्स, हैंडीक्राफ्ट्स, बहुत कुछ मिल जाता है। अगर आपको यूनिक और हैंडमेड चीज़ें कलेक्ट करना पसंद है तो यू विल प्रोबेबली एंड अप स्पेंडिंग क्वाइट अ बिट टाइम ओवर हियर। और सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, इस एरिया में और भी कैफ़ेज़ हैं, तो एक्सप्लोर करो, थोड़ा शॉपिंग करो, थोड़ा खा लो और बिना किसी जल्दी के इस जगह के वाइब इंजॉय करो। ऑनेस्टली ऑरोविल इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा ना उसका एक्सपीरियंस याद रह जाता है। अब वक्त हो चला था वापस अपने रिसॉर्ट जाने का। मैं अपनी स्कूटी पर बैठी और वापस गई। वहाँ मुझे रिसॉर्ट में एक छोटा सा पपी मिला था जो कि बहुत ही क्यूट था, और जो मुझे जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि मुझे डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसके साथ में थोड़ी देर खेली। माई हार्ट वॉज लिल हैवी क्योंकि ऑरोविल छोड़ के जा रही थी। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी था, पर मुझे पौंडीचेरी की फ्रेंच कॉलोनीज़ भी देखनी है। तो कल मैं यहाँ से चेकआउट करूँगी, पर चेकआउट करने के टाइम पर मैंने यहाँ के मैनेजर से बात करी। आओ सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। हेलो अंकल। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। और यहाँ पर रुकी मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा अंकल। आपकी सर्विस, आपकी क्या बोलते हैं, मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगी। आप कुछ कहेंगे कितने टाइम से यहाँ पर आने के लिए कैसे बुकिंग करेंगे? ये हमने लास्ट ईयर जनवरी में शुरू किया है जी, और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आ रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है हमारा काम। और हमें खुशी होती है कि लोगों की सेवा करके लोगों को अच्छा सर्विस दे के खुशी होती है। थैंक यू अंकल। और यहाँ पर दीदी हैं, ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बना के देती हैं। आपको हिंदी समझ में नहीं आती ना दीदी? ओनली तमिल, पर बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने जो खाना बना के दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देखिए यहाँ पर किचन इज सो नीट एंड क्लीन कि मुझे, दो हम लोग जंगल के बीच में है, पर मुझे बिल्कुल भी ना कोई फंगस ना कोई, मतलब इट वॉज सच नीट एंड क्लीन प्लेस। थैंक यू दीदी। ये मेरा लास्ट डे था कवस रिसॉर्ट में। मैंने यहाँ की बुकिंग सिर्फ और सिर्फ अच्छे रिव्यूज़ देख के ही की थी, और इस बात में कोई शक नहीं है कि जब मैं यहाँ पर आई तो अंकल से मिलने के बाद में द वे ही ट्रीटेड मी, सबसे पहले जैसे ही आई मैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर बहुत ही प्यार से चाय पिलाई विच वॉज नॉट चार्जेबल। उसके बाद में मुझे रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट मिलता था, बिल्कुल होममेड ब्रेकफास्ट है गाइस। अगर आप लोग को बाहर से आ रहे हैं और अगर बहुत ऐसे ऑयली ग्रीसी खाना नहीं खाना है, घर का बना हुआ, तो बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा। ऑल्सो अंकल को अगर मेरे को छोटी छोटी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी और मैं अगर उन्हें बोलती थी तो वो इमीडिएटली ही वॉज इन ऑन हिज टोज़। कुछ भी चीज़ करने के लिए बहुत ही दिलदार अंकल है। अंकल मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मैं इसके लिए रिव्यू भी करूँगी और मैं हर किसी को रेकमेंड करूँगी कि कोई भी अगर ऑरोविल आ रहा है तो इस जगह पर रुकना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी लोगों को भी आने के लिए प्रेरित करें। जी बिल्कुल। थैंक यू अंकल। बाय गाइस। इसके बाद में मैं अभी जा रही हूँ पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी में जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ पर भी मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूँगी। फ़िलहाल अभी मेरे चेकआउट करने का टाइम हो गया है। टैक्सी इज़ वेटिंग फॉर मी, और इस जगह को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है सीरियसली। ऐसा लगा था मैं अपने घर में ही थी। दो मुझे वो रिसॉर्ट वाला फील भी आ गया था, हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी थी। अब थोड़ी सी गर्मी हो गई है यहाँ पर,
पर वो रही मेरी टैक्सी, मेरा इंतज़ार कर रही है। एंड आई विल टेक यू विथ मी इन पॉन्डिचेरी नाउ। तो मुझे ये मिला छोटू सा, अब मुझे इसको भी बाय बाय बोलना पड़ेगा। बाय बाय कू, बाय। केस यू गाइज आर वंडरिंग कि ये जगह मैंने कैसे ढूंढी, तो उसका सारा डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दे दूंगी। यू कैन चेक ऑल द डिटेल्स फ्रॉम माई डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए इस रिसोर्ट को कहते हैं बाय बाय और चलते हैं पौंडीचेरी की तरफ। आई कांट वेट टू स्टे देयर इन द फ्रेंच कॉलोनीज। एंड या गाइज, इफ यू लाइक माई व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।